چیرنگ کراس پر گرینڈ ہیلتھ الائنس کا دھرنا 22ویں روز بھی جاری ہے۔ احتجاجی مظاہرین کا آج سی ایم ہاؤس کی طرف مارچ کا اعلان۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں توقیر اکرم سے۔ جی توقیر، آگاہ کیجیے گا۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا دھرنا جو ہے وہ 22ویں روز میں داخل ہو گیا اور مظاہرین نے یہ کہا ہے کہ صبح 9 بجے پیر کو سی ایم ہاؤس کی طرف روانہ ہوں گے اور وہاں جا کر دھرنا دیں گے جب تک ہمارے مطالبات تسلیم کیے نہیں کیے جاتے، جبکہ پنجاب بھر کے ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف کو بھی یہ پیغام بھجوا دیا گیا ہے کہ وہ تمام تر لوگ جو ہیں وہ ریلیوں کی صورت میں چیرنگ کراس پہنچے اور یہاں سے صبح 9 بجے جو ہے وہ سی ایم ہاؤس کی طرف روانہ ہوں گے۔ مظاہرین کی بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے، خواتین کی بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے جو کھلے آسمان کے نیچے سو رہی ہیں، انتظار کر رہی ہیں کہ کب حکومت جو ہے وہ ہمیں سیریس لے گی، سنجیدگی لے گی اور ہمارے ساتھ مذاکرات کرے گی، ہمارے مطالبات سنے گی۔ اس کے اندر صرف ایک مطالبہ انہوں نے کیا ہے کہ جو ہسپتالوں کی نجکاری کا فیصلہ کیا گیا اس کو فوری طور پر واپس لیں۔ دوسری جانب چیرنگ کراس کے اوپر ہی پنجاب یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے طلبہ ہیں انہوں نے بھی گزشتہ 4 روز سے یہاں پر دھرنا دیا ہوا ہے اور ان کا مطالبہ ہے کہ جو نئے آنے والی وی سی ہیں انہوں نے فیسوں کے اندر 100% اضافہ کیا ہے، جو ہاسٹل سے اسٹوڈنٹس کو نکال رہے ہیں ان کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، فیسوں میں کمی لائی جائے، یا کمی کا جو نوٹیفیکیشن دیا گیا ہے اضافے کا وہ ختم کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے توقیر، بہت شکریہ آپ کا۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 54 دہشت گرد مارے گئے۔ 25 اور 26 اپریل کی شب خوارج شمالی وزیرستان میں داخل ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز نے خوارج کو 3 اطراف سے گھیر کر نشانہ بنایا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پریس کانفرنس، کہا خوارج سے اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا ہے، 8 آئی ڈیز پکڑی گئی ہیں۔ فتنہ خوارج کی موومنٹ بھارت سے ہو رہی تھی، ہمارے پاس انفارمیشن تھی، بیرونی آقا ان پر پاکستان جانے کے لیے پریشر ڈال رہے تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کا آج اہم ترین دن ہے کیونکہ 25، 26 اور 27 کی شب الخوارج کا لشکر پاکستان میں داخل ہوا۔ اس دوران سیکیورٹی فورسز نے 13 اطراف سے حملہ کر کے 54 خوارج کو جہنم واصل کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس انفارمیشن تھی، بیرونی آقا ان کو پاکستان جانے کے لیے پریشر ڈال رہے تھے۔ پاکستان سیکیورٹی فورسز کا آج اہم ترین دن ہے۔ 25، 26 اور 26، 27 کی درمیانی رات کو خوارج کا لشکر جو تھا وہ ہمارے پاس انفارمیشن ملی کہ وہ پاکستان کے اندر انٹر ہوئے ہیں۔ پوری طرح ہمیں مکمل ہو گیا کہ یہ آ گئے ہیں، سارا کا پورا لشکر آ گیا ہے، تو 3 طرف سے ہمارے جوانوں نے ان کے اوپر اٹیک کیا اور 54 خوارج جہنم رسید کیے۔ ہمارے پاس یہ انفارمیشن کچھ دن سے تھی کہ ان کے جو بیرونی آقا ہیں وہ ان کو پش کر رہے ہیں کہ آپ جلد از جلد پاکستان میں گھسیں اور جا کے کوئی ایکٹیویٹی کریں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ فنڈنگ کے ذریعے فتنہ الخوارج کی موومنٹ بھارت سے ہو رہی تھی۔ آئی ایس پی آر نے ڈیڈ باڈیز کی تصاویر جاری کر دی ہیں۔ اس طرح سے پاکستان میں داخل ہونا دہشت گردی کی فنڈنگ کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ یہ فتنہ خوارج کا بھی یہ والی جو موومنٹ ہے یہ وہیں سے آ رہی تھی اور ان کو پش کیا جا رہا تھا کہ کسی طریقے سے آپ پاکستان میں داخل ہوں اور جا کے یہ دہشت گردی۔ ہم آپ کے ساتھ تصویریں آئی ایس پی آر نے آلریڈی شیئر کر لی ہیں، آپ کے ساتھ یہاں پہ بھی شیئر ہو گئی ہیں۔ بہت بڑا دنیا کے لیے ثبوت ہے کہ کس طریقے سے یہ دہشت گردی کی پش پناہی کی جاتی ہے، کس طریقے سے ان کی کوئی تو فنڈنگ کر رہا ہے، ان کو کوئی تو بھیج رہا ہے، کسی کا تو کوئی موٹیو ہے، وہ سب کو پتہ ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ اس واقعے پر سیکیورٹی فورسز کو مبارکباد دینے کا دن ہے کیونکہ کچھ عرصہ سے خوارجوں کے پاؤں مسلسل اکھڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد دوبارہ آنے کی کوشش کریں گے تو اس طرح ماریں گے، دہشت گردی کی تمام کارروائیوں کو ناکام بنائیں گے۔ حملہ آوروں سے اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا ہے۔ کیمرہ مین ملک جاوید کے ساتھ شاہد سپرا، سٹی 42۔ وفاقی حکومت نے لیسکو کی بے ضابطیوں کی تحقیقات مکمل کر لی ہیں۔ وزیر اعظم نے فوجداری اور محکمانہ کارروائی کی منظوری دے دی۔ تحقیقاتی کمیٹی نے مٹیریل کی خریداری سمیت دیگر امور کی انکوائری وزیر اعظم کو ارسال کی تھی۔ وزیر اعظم نے سیکریٹری داخلہ اور سیکریٹری پاور ڈویژن کو کارروائی کرنے کا حکم دے دیا۔
वफाकी हुकूमत ने लेस्को में मटीरियल की खरीदारी समेत दीगर बेज़ाब्तियों की तहकीकात को मुकम्मल कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी सिफारिशात को मंजूर कर लिया। वज़ारत दाखिला और वज़ारत पावर डिवीजन को कानूनी और महकमाना कार्रवाई की हिदायत कर दी। ज़राए ने बताया कि तहकीकाती कमेटी ने मटीरियल की खरीदारी समेत दीगर अमूर की इंक्वायरी वज़ीर-ए-आज़म को इरसाल की थी, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने सिफारिशात मंजूर करते हुए सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी पावर डिवीजन को कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक मटीरियल की खरीदारी में पेपरा रूल्स के मुताबिक की जाएगी। ब्लैक लिस्ट होने वाली कंपनियों को मुस्तरद किया जाए। इंक्वायरी कमेटी ने ग्रिड स्टेशन के मटीरियल को दोबारा टाइप टेस्ट करवाने और लेस्को एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के इख्तियारात में वापडा रूल्स बारे में तरमीम करने की सिफारिश की है। AMI मीटर्स की तनसीब को यकीनी बनाने, कंपनी में इजाफी चार्ज और इडाक पर भर्ती के लिए कानून साजी करने की सिफारिश की गई है। एक तरफ महंगाई का तूफान तो दूसरी तरफ अशिया ज़रूरिया पर गिरां फरोशी। ज़िले इंतजामिया ने घुटने टेक दिए। दूध, दही, रोटी सब महंगे हो चुके हैं। तनूरों पर रोटी 14 की बजाय 16 रुपये और दूध 170 के बजाय 200 रुपये किलो, दही 180 की बजाय 230 रुपये किलो में फरोख्त होने लगा। एक तरफ महंगाई का तूफान तो दूसरी तरफ अशिया ज़रूरिया पर गिरां फरोशी। जिला इंतजामिया रिट कायम करने में नाकाम। दूध, दही, रोटी महंगे दामों फरोख्त होने लगी। शहर के बेशतर तनूरों पर रोटी 14 के बजाय 16 रुपये फरोख्त होने लगी। गड़ी शाही सरकारी रेट के बरक्स दूध और दही की फरोख्त जारी। दूध 170 के बजाय 200 रुपये किलो तक बेचा जा रहा है। दही 180 के बजाय 230 में फरोख्त होने लगा। उधर मॉडल कार्ड्स मंसूबा भी शहरों का इस्तेहसाल करने लगा। हिदायत के बावजूद मॉडल कार्ड्स में निर्ख नामों पर अमल दरामद न करवाया जा सका। शादमान मॉडल कार्ड्स पर अशिया 50 से 100 रुपए इजाफी कीमत पर फरोख्त होने लगी। शादमान मॉडल कार्ड्स में फल महंगे दामों बिकने लगे। केला 240 के बजाय 260 रुपए दर्जन, सेब 310 के बजाय 400 और तरबूज 40 के बजाय 60 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। दूसरी जानिब सब्जियां भी दुगनी कीमत पर बेची जा रही हैं। शिमला मिर्च 50 के बजाय 100, टमाटर 50 के बजाय 60 रुपए किलो फरोख्त, भिंडी 185 के बजाय 240 की गैर मामूली कीमत पर फरोख्त हो रही है। शहर में अशिया ज़रूरिया, फल और सब्जियां महंगे दामों बिकने पर अवाम ने सर पकड़ लिए। 70 से जायद प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स मौसर कार्रवाइयां करने में नाकाम हो गए। पाक भारत कशीदगी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने भी अपनी हिकमत अमली मुरतब कर ली। लाहौर से कुआलालंपुर जाने वाली PIA की परवाज का रूट तब्दील कर दिया गया। लाहौर से कुआलालंपुर जाने वाली परवाज इंडियन फिजाई हदूद की बजाय चीनी फिजाई हदूद से रवाना की गई। परवाज PK 898 ने कुआलालंपुर के लिए चीनी फिजाई हदूद इस्तेमाल की। कैप्टन राव तैमूर की कमांड में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज लाहौर से कुआलालंपुर के लिए रवाना हुई। 5 घंटे 14 मिनट पर मुहित परवाज का दुरानिया 3.5 घंटे बढ़ गया। चीनी फिजाई हदूद से सफर का दुरानिया तकरीबन 8 घंटे 45 मिनट होगा। ग्रीन टाउन 112 स्टॉप मेन बाजार में सीवरेज पाइपलाइन मंसूबा सुस्त रवि का शिकार है। एक माह कबल शुरू होने वाले मंसूबे का 50% काम भी मुकम्मल ना हो सका। इलाका मकीनों समेत राहगीरों को भी आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। इलाका मकीनों और ताजों का हुक्काम से मंसूबा जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा। मजीद जान लेते हैं रुमेल इलियास से। जी रुमेल, बताइएगा। बिल्कुल, ग्रीन टाउन के इलाके 112 नंबर स्टॉप मेन बाजार में एक माह कबल इंतजामिया की जानिब से सीवेज पाइपलाइन तब्दीली का मंसूबा शुरू किया गया था, मगर सुस्त रवि के बायस इस मंसूबे पर 50% काम भी अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका है और जो यहाँ के मकीन और ताजर हैं उन्हें अज़ियतनाक मुश्किलात का सामना है। घरों के बाहर जमा जो मलबा है उससे इलाका मकीनों की आमदरफ्त मुतासिर है, जबकि दुकानों के बाहर की गई खुदाई के बायस जो पड़े गहरे खड्डे हैं उनसे जो ताजर हैं उनकी कारोबारी सरगर्मियाँ मफलूज होकर रह चुकी हैं और शिकायत के बावजूद इंतज़ामिया इस सूबे पर जो काम है वो तेज़ करने में नाकाम है। मेरे साथ ताजर और मकीन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनका मज़ीद इस हवाले से क्या कहना है। बताएं जी, क्या कहेंगे, ये मनसूबा क्यों मुकम्मल नहीं हो रहा? सर, पहली बात तो ये है, ये 1 महीने से ये काम शुरू हुआ है और 1 महीने से जो हमारे कारोबार हैं वो बिल्कुल तबाह हो गए हैं। इतनी मट्टी होने के बावजूद कस्टमर कहाँ से आएगा? ये जितने गड्ढे खुदे हुए हैं ये ना बंद कर रहे हैं। ये पानी की लाइन फटी हुई है, आप देख सकते हैं जगह जगह पानी खड़ा हुआ है। घरों में साफ पानी आ नहीं रहा और जो मेन का जो साफ पानी है वो यहाँ पे पाइप फटे हुए जो इनसे जुड़ नहीं रहे। कंप्लेन पे कर करके वासा को कंप्लेन की हमने कि सर ये देखिए। ठीक है रुमेल, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में जारी तरक्याती काम मकीनों के लिए वबाले जान। ठेकेदार तामीराती काम अधूरा छोड़कर गायब। धूल मट्टी और गर्दो गुबार से शहरी वबाई अमराज का शिकार है। इंतजामिया की गफलत के बायस पार्कों की हालत अबतर होने लगी। जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए।
झीलदा रोड इचरा में जारी तरक्याती काम मकीनों के लिए आजाब बन गए। मेन हॉल की तामीर अधूरी छोड़ दी गई। मोटरसाइकिल सवार शहरी मेन हॉल में जाग गिरा। झीलदा रोड और मुल्हिका गलियों में कई फुट गहरे खड्डे खोद दिए गए। अमले की जानिब से गैस लाइन काटे जाने के बाद इलाका गैस से महरूम हो गया। इलाके में खुली सीवरेज लाइन की वजह से ताफुन फैल गया। घरों के सामने मिट्टी के ढेर लगने से शहरी अपने ही घरों में महसूर हो गए। से पूछें, आपके 2 महीने हो गए हैं, ये दुकानदार परेशान हाल है। ये मिट्टी के पहाड़ बन गए हैं भाईजान। ये ऐसे है कि हमारे लिए ये बबाले जान है। इसका कुछ करना चाहिए। ये 2 प्रोस्पेक्ट हैं जी, एक कारोबारी प्रोस्पेक्ट है। जो कारोबार तो बिल्कुल बंद है ना, यहाँ पे कोई कैसे आएगा कंज्यूमर, कैसे कस्टमर आएगा जब यहाँ पे मौत का कुआं यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे 2 महीने से काम तो हो नहीं रहा और यहाँ पे अभी जो बंदा गिरा है इस वक्त तो लोग उसको बचा सकते हैं, रात को गिरेगा तो कौन बचाएगा। गुलबर्ग गोपाल नगर के फैमिली पार्क में बेंच और झूले टूट गए। घास की वजह धूल मिट्टी ने ले ली। मुनासिब देखभाल न होने से पार्क में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। अहले इलाका का कहना है कि मुतल्लिका इंतजामिया और सियासी क़यादत को कई बार शिकायत दर्ज करवाई हैं, कोई अमल दरामद नहीं होता। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम चंद्राय रोड के बासियों के लिए बीमारियों का मुआवजा बनने लगे। मंसूबे के बायस की गई खुदाई के बाद पानी का छिड़काव न होने से इलाके में धूल मिट्टी उड़ती रहती है। शहरियों ने एहतजाज करते हुए कहा कि 4 माह से जारी मंसूबे के बायस इलाके में गर्दो गुबार है। ठेकेदार को पानी के छिड़काव के मुतअद्दिद दरख्वास्तें की हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की। मौजूदा सियासी सूरत हाल और पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मुलाकात के मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को पहलगाम वाक़े के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। नवाज शरीफ ने हालिया मुल्की और आलमी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गाइडलाइन दी। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में लिए गए फैसलों पर नवाज शरीफ को आगाह किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों के वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ और सरमायाकारी को महफूज बनाने के लिए किए गए हुकूमती इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफ़द की तजावीज़ को बग़ौर सुना। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफ़द की तजावीज़ को बग़ौर सुना और हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हर तरह की सरमायाकारी के लिए एक महफूज मुल्क है। पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वाले इन्वेस्टर्स का तहफ़्फ़ुज़ हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। हुकूमत ने सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर इक़दाम किए हैं। बाज़ शरपसंद अनासर के हमलों का सख्ती से नोटिस लिया गया और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी है। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हिकमत अमली वज़ा कर ली गई। हमारा दीन इस्लाम अमन व आश्ती का दर्स देता है। सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हर सूरत निभाई जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज से वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के आला सतह वफ़द की मुलाकात हुई। ब्लॉकचेन इनोवेशन, टोकनाइजेशन, रियल वर्ल्ड एसेट्स और स्टेबल एप्लीकेशन पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के मंसूबे पर गौर किया गया। मादनियात, एग्रीकल्चर समेत पाकिस्तान के वसी कुदरती वसाइल, हकीकी असासों की टोकनाइजेशन का जायज़ा लिया गया। डिजिटल लेन देन में शफाफियत, बेहतर कारकर्दगी और सिक्योरिटी उमूर के लिए स्टेबल कॉइन सोल्यूशन के निफाज पर बातचीत की गई। मुलाकात में तरसीलात ज़र, मालियाती लेन देन और आलमी तजारत के बेहतर फ्रेमवर्क की ज़रूरत पर जोर दिया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर रहमान और YDA ओहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाफिज़ नेमुर रहमान का हुकूमत से सरकारी इलाजगाहों की निजकारी का फैसला वापस लेने का मुतालबा। 23 दिन हो गए, 23 दिन से इन्होंने धरना दिया हुआ है और अफसोस की बात यह है कि बड़े बड़े दावे करने वाली हुकूमत वो न सिर्फ ये कि इनके मसाइल सुन नहीं रहे बल्कि एक जालिमाना तरीके से इस पूरे अमल को देखा जा रहा है। और जब इन्होंने एहतजाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो इन पर तशद्दुद भी किया गया, जिसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इनका मुतालबा बिल्कुल जायज़ है। इनका मुतालबा ये है कि जो बेसिक हेल्थ यूनिट हैं या तहसील के हॉस्पिटल्स और सेंटर्स हैं या डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स और सेंटर्स हैं, ये सब वो हैं जो क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक बने हैं और उसके बाद भी बनते रहे हैं। और इसमें सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत कॉन्ट्रैक्टर्स की कॉन्फ्रेंस। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ीक ने कॉन्फ्रेंस की सदारत की। कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद मियाँ और एडिशनल सेक्रेटरी अहमद कैफ़ी भी शरीक हुए। इस मौके पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम के अहदाफ, दरपेश चैलेंजेस और अब तक की कामयाबियों पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम का आगाज़ 3 माह कबल किया गया था और अब तक 1,13,000 मुलाजमतें फ़राहम की गई हैं। उन्होंने बताया कि 23,000 मशीनरी सूबे भर में फ़राहम की जा चुकी है और ये प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर डिजिटल है, जिसमें कंट्रोल रूम में ज़ाहिर होने वाले डाटा को कारकर्दगी का पैमाना माना जा रहा है। वज़ीर बल्दियात ने कॉन्ट्रैक्टर्स को 6 माही जायज़ा लेने के लिए लाहौर बुलाया।
वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का हल्का NA 119 का दौरा सिंहपुरा समेत दीगर इलाकों में आवाम की गमी खुशी में भी शरीक हुए। वफाकी वज़ीर अली परवेज़ ने सिंहपुरा समेत दीगर इलाकों में हल्के के अवाम से मुलाकात की, मसाइल सुने और हल्के ये वादा भी किया हल्के के अवाम की गमी और खुशी में शरीक हुए। जबकि अली परवेज़ ने कहा कि अवाम से राबता कायम करना सियासत का बुनियादी मकसद है। हमेशा कोशिश की है कि अवाम के तमाम मसाइल को दूर किया जाए। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन की BP 174 में खुली कचहरी, अवामी मसाइल सुने, जल्द हल की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग बिलाल यासीन के हल्के में खुली कचहरी लगाई। हल्के की अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हल्के अमायदीन और लोगों के मसाइल सुने, मुतल्लिका हुकाम को दाद रसी की हिदायत जारी की। बिलाल यासीन का कहना था कि वजारत आपकी और क़यादत की अमानत है। हल्के के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करवाना अव्वलीन फरीज़ा समझता हूँ। वज़ीर आला पंजाब आपके रोज़मर्रा मसाइल को हल करने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर पूछती हैं। MPA मियां मरगूब अहमद ने हल्का PP 173 के मुख्तलिफ यूसीज का दौरा किया। हल्के के अवाम से मुलाकात की और तरक्याती कामों का जायजा लिया। MPA मियां मरगूब अहमद ने UC 64, 67, 72 और 73, UC 74 और दीगर यूसीज का दौरा किया। नदीमुल हसन, शाह इकबाल गुज्जर, मियां गजनफर जावेद, शफीक बलोच और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। मकसूद जंजुआ, सैयद सिद्दीक संजानी और अवैस सचद समेत दीगर भी इस मौके पर शरीक हुए। MPA मियां इमरान जावेद की PP 163 बागड़िया में खुली कचहरी, अवामी मसाइल सुने, रिलीफ फराहम करने का आज़म जाहिर किया। MPA मियां इमरान जावेद ने अवामी मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी का इनेकाद मरकजी दफ्तर PP 163 बागड़िया में किया गया। जमशेदू, तारिक महमूद, मलिक मोहसन नंबरदार, चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा, चौधरी इकबाल, रियाज भट्टी शरीक हुए। मलिक मंशा, आमिर खान, बिलाल रफ़ीक, हाजी हामिद सुल्तान, शमीम अख्तर, बुशरा मलिक, रिमशा शब्बीर समेत दीगर ने शिरकत की। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़िशान रज़ा ने 5 थानों के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के तबादले कर दिए। इंस्पेक्टर मोहम्मद सलीम इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना गाजियाबाद, सब इंस्पेक्टर मनसब खान को इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर तैनात कर दिया गया। जबकि सब इंस्पेक्टर खालिद याकूब इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर, सब इंस्पेक्टर आबिद हुसैन को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना टिब्बी सिटी लगा दिया गया। सब इंस्पेक्टर जफर इकबाल इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर, सब इंस्पेक्टर खुरम सलीम इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना शादमान लगा दिए गए। इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से हम इजलास मुआवने खुसूसी इंसदाद पोलियो उज़्मा कारदार ने सदारत की। DC मूसा रज़ा समेत दीगर अफसरान की शिरकत। अफसरान ने इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से ब्रीफिंग दी। कैंपेन है उसको मेरे बिहाफ पे आपने जाके मॉनिटर भी करना है, देखना है कि सारी चीज़ें जो हैं हमारी वो एक सही तरीके से चल रही हैं। जो उन्होंने प्रोविंशियल टास्क फोर्स की इस दफ़ा मीटिंग उन्होंने खुद शेयर की थी, सारे हमारे DC साहिबान भी, चीफ सेक्रेटरी हमारे उसमें मौजूद थे। तो उन्होंने जो हदफ दिया था वो उन्होंने कहा था जी मुझे पोलियो 0 लेवल पे चाहिए, कोई इसमें दो राय नहीं है। और ख़ास तौर पे 2 चीज़ें उन्होंने कहा था कि जो लो परफॉर्मिंग यूसीज हैं उनको आप उनकी कैंपेन को अपग्रेड करें, देखें क्या प्रॉब्लम्स आई उनमें, ताकि वो हम उसको कवर करें। और नंबर 2 उन्होंने कहा था कि जो मिस्ड बच्चे हमारे आ रहे हैं। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लाहौर मलिक ज़मान नसीब की रिहाइश का आमद। अब्दुल अलीम खान ने मलिक ज़मान नसीब को बेटी की शादी की मुबारकबाद दी और 9 ब्याहता जोड़े के लिए ख्वाहिशात का इजहार किया। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लाहौर मलिक ज़मान नसीब से उनके घर पर मुलाकात की। MPA शुएब सिद्दीकी, सीनियर ताजिर रहनुमा मोहम्मद अली सुबहान ज़मान नसीब भी मौजूद थे। सदर पापड़ मंडी शालमी मलिक उस्मान, सदर शूज़ मार्केट मलिक अबूज़र, हाजी जमील, मलिक इरफान, मलिक आमिर, ख्वाजा एजाज, चौधरी अमजद भी शरीक। मियाँ सईद, मलिक तनवीर, शेख नौरेज, शेख फैसल, हैदरबर्ड, चौधरी रऊफ़ ने शिरकत की। जनरल सेक्रेटरी कौमी ताजिर इत्तेहाद लाहौर शेख आमिर समेत दीगर भी शरीक थे। हमदर्द पाकिस्तान की जानिब से पंजाब पुलिस के अफसरान के एजाज़ में तकरीब पजीराई। तकरीब में जस्टिस रिटायर्ड रियाज अहमद खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में कमर इल्ताफ़ सहाफ़ी और दानिशवर मुजीबुर रहमान शामी, SSP आदिल रशीद, समाजी रहनुमा शाहिद कादिर, शाहिद चदड़ और खालिद सईद खान शरीक हुए। मेज़बान डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन हमदर्द अली बुखारी ने कहा तकरीब का मकसद इन पुलिस अफसरान की खिदमत का एतराफ़ करना है जिन्होंने अपनी जानफशानी, बेलौस खिदमत और मिसाली किरदार के ज़रिए महकमा पुलिस की इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा किया। मुल्तान सुल्तान्स के ऑलराउंडर डेविड विले कहते हैं कि ये सीज़न मुल्तान सुल्तान्स के लिए अच्छा नहीं रहा। बैटिंग और बॉलिंग में नाकामी से शिकस्तों का सामना रहा। अपना एक माइंड सेट है, मैं तो कभी आज तक मुझे ये भी नहीं, जब भी जितना मैच हुआ मैं आज तक विकेट पे गया ही नहीं, विकेट भी नहीं देखा कि यार विकेट कैसा है कैसा नहीं,
کیونکہ میں ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا کہ وکٹ کیسا ہے نہیں. بس آپ اپنے کانفیڈنس سے کھیلو اور دلیری سے انسان کھیلے تو جس انسان نے محنت کی تو رزلٹ آ جاتا. اور اپنے ماں باپ کو کریڈٹ دوں گا اور اپنے آپ کو, میں کسی کو بھی کریڈٹ نہیں دوں گا کیونکہ میں نے خود محنت کی ہے اور یہاں پہ پہنچنے کے لیے کافی ٹائم لگا. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.